تو آج بتا رہی ہوں جمع الجمع. یہ اہم سوال ہوتا ہے امتحان میں. اس کو آپ 2 مارکس کا کوشچن یہ ہوتا ہے. اگر یہ امتحان میں آئے گا تو یہ 2 مارکس کا آپ کا کوشچن ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو گنتی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، گنتی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. گنتی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں، یہ جو آپ نے پہلی کلاس میں پڑھا ہے. تو واحد جمع. واحد جمع. واحد وہ اسم ہے جو صرف ایک چیز کے لیے بولا جائے. ایک چیز کے لیے جب ایک چیز ہوگا تو اس کو واحد کہتے ہیں. ایک قلم، ایک کتاب، ایک بچہ، ایک مکان، ایک گھر، ایک سکول، تو وہ سب واحد ہے. تو جب ایک سے زیادہ ہوگے، جتنے بھی ہوگے، 1000 ہوگے، کروڑ ہوگے، کچھ بھی ہوگا، تو وہ جمع ہے ایک سے زیادہ. یہاں میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں میں کچھ جملے آپ کو بتاؤں گی، تو آپ ان جملوں کو غور سے سنے گی، اور آپ اسی طرح سے آپ کو امتحان میں آتے ہیں واحد جمع کو آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے. عورت پل پر جا رہی ہے، یعنی کہ عورت جو ہے وہ واحد ہے، ایک ہے، جا رہی ہے. تو ثابت ہوا یہ سینٹنس جو ہے اس میں عورت واحد ہے، تو یہ واحد کے لیے استعمال ہوا ہے. چپراسی گھنٹی بجا رہا ہے، تو چپراسی بھی واحد ہے، ایک ہے چپراسی. یہ جملہ واحد کے طور پر استعمال ہوا ہے. کمرہ بہت سجا ہوا ہے، کمرہ واحد ہے، سجا ہوا یہ ہوا ہے، تو یہ ثابت ہوا یہ واحد ہے. تو پھر پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، تو پرندہ جو ہے وہ واحد ہے، ایک ہی پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے. بکری چر رہی ہے، تو بکری جو ہے وہ چر رہی ہے، یعنی گھاس کھا رہی ہے، ایک ہی بکری، یہ بھی واحد ہے. یہ جو جملے میں نے آپ کو بتائے اوپر کے جملے میں عورت، پرندہ، چپراسی، بکری، کمرہ، ایسے اسم میں جو صرف ایک چیز کو ظاہر کرتے ہیں، ایک چیز کو یہ ظاہر کرتے ہیں، ایسے اسم کو کہتے ہیں واحد. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں؟ واحد. ایک کو ظاہر کرے اس کو کیا بولتے ہیں؟ واحد. واحد بولتے ہیں اس کو. یہاں میں آپ کو کچھ جملے بتاؤں گی، آپ ان کو پورا کریں گے اور مجھے بتائے گی درج ذیل جملوں کی خالی جگہوں کو مناسب طور پر پر کیجیے. اگر آپ کے سامنے کاپی ہے تو کاپی پر آپ لکھیے اور مجھے بتائیے. استاد ڈیش پر بیٹھا ہے. استاد کرسی پر بیٹھا ہے. کرسی پر بیٹھا ہے. واحد. استاد واحد ہے، استاد واحد ہے. واحد ہے. دوسرا جملہ ہے ڈیش میدان میں کھیل رہا ہے. بچہ میدان میں کھیل رہا ہے. بچہ، لڑکا، بچہ ہے واحد. یہ ہم بتا سکتے ہیں، یعنی کہ بچہ بھی واحد ہے، بچہ ایز واحد بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی استعمال ہوتا ہے. اگر آپ لڑکا بولے گی تو اچھا رہے گا، لڑکا میدان میں کھیل رہا ہے. میرا ڈیش مجھ سے 4 سال بڑا ہے. میرا بھائی مجھ سے 4 سال میرا بڑا بھائی. میرا بھائی مجھ سے 4، بھائی بھی یہاں پر واحد ہے. ڈیش ہوا میں اڑ رہا ہے. پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے. پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، واحد ہے. یہ آپ کو امتحان میں آتے ہیں یہ الفاظ، ان کو آپ کو یہ جملے بنانے ہوتے ہیں اور واضح کرنا ہوتا ہے. یہ واحد ہے، یہ لفظ یا جمع ہے. سارا دودھ ڈیش نے پی لیا. سارا دودھ بلی نے پی لیا. شاباش، بہت خوب. تو جو بھی لفظ آپ نے یہاں لڑکا بولا، استاد بولا، استاد واحد ہے. لڑکا بولا، لڑکا واحد ہے. بھائی بولا، واحد ہے. پرندہ بولا، واحد ہے. اور بلی بولی آپ نے، وہ بھی واحد ہی ہے. واحد ہے. ہاں. تو یہ سارے الفاظ واحد ہیں. تو اب یہاں پر ہے واحد، میں نے آپ کو سمجھایا، اور واحد کو کیسے جملے میں استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا. اب جمع ہے. جمع وہ اسم ہے جس میں ایک سے زیادہ چیزوں کا ہونا ظاہر ہو. ایک سے زیادہ چیزیں، جہاں
मैंने आपको बोला 100 1000 करोड़ वगैरह सारे फिर जमा है, सिर्फ एक के लिए वाहिद इस्तेमाल होता है। अब कुछ जुमले मैं आपको बताऊंगी, आप बताए ये जुमले क्या है। तो यहाँ वाहिद कौन सा लफ्ज, जमा कौन सा लफ्ज है। कुर्सियां कतार में लगी हुई है यहाँ हमें जमा है इस्तेमाल करना है। अगर आप हम जमा है इसमें नहीं लगाएंगे तो जुमला गलत होगा, जुमला दुरुस्त नहीं माना जाएगा। इसी से जो लास्ट पर जमा है, अगर वाहिद के लिए वाहिद है जिसको हम बोलते हैं ये तुच्छ बना बोरी है लौकुठी है, तो इसलिए तो यहाँ पर ये है, यहाँ हमें है इस्तेमाल, वहाँ है इस्तेमाल का, यहाँ है इस्तेमाल करता है। कुर्सियां कतार में लगी हुई हैं, यहाँ कौन सा लफ्ज जमा है। कुर्सियां। हाँ शाबाश, कुर्सियां जमा है। लड़के दौड़ रहे हैं, लड़के जमा है। लड़के जमा है। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, परिंदे। हाँ परिंदे जमा है। लड़कियां गा रही हैं, लड़कियां शाबाश गा रही है। ये कपड़े बहुत ही उम्दा है, कपड़े यहाँ पर आया है कुर्सियां, लड़कियां, लड़के, कपड़े तो परिंदे, ये सारे लफ्ज जो यहाँ आए हैं ये जमा है। इनको हमने जमा के तौर पर जुमलों में इस्तेमाल किया, वहां पर वाहिद के तौर पर हमने लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल किया। तो आप दारिज ज़ैल जुमलों को जो जुमले में आपको बताऊंगी, आपको उन जुमलों को पूरा करेंगे और मुझे बताएंगे क्या करना है इन जुमलों को। सारी डैश चरागाह में मौजूद है, सारी शाबाश, जहाँ घास खाते हैं घोड़े गाय वगैरह बकरे जहाँ घास खाते हैं उसको कहते हैं चरागाह, जहाँ वो घास खाते हैं। सारी डैश चरागाह में मौजूद है, सारी बकरियां सारी बकरियां चरागाह में मौजूद हैं। बकरियां जो है वो जमा बन गया है, मौजूद इसको है लगाना है, अगर लगाएंगे तो गलत है लगाना है। मकान की सारी डैश बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, शाबाश, खिड़कियां जमा है यहाँ पर। हमने बहुत से डैश खाए, हमने बहुत से डैश खाए, बहुत से सेब या कुछ, हाँ बहुत से सेब, बहुत से अंडे, बहुत से अनार वगैरह कुछ भी हम लिख सकते हैं जो जमा हो गए। तो डैश बंद करके हम कुछ नहीं देख सकते, आंखें बंद करके हम कुछ नहीं देख सकते, शाबाश। डैश रात को भूख रहे थे, कुत्ते शाबाश, कुत्ते रात को जमा, ये हम जमा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस्तेमाल जमात के तौर पर हो रहे हैं ये जुमले। दल और वलर कश्मीर की दो मशहूर झीलें हैं, शाबाश, बहुत खूब। सारी ये बकरियां यहाँ जमा आया, सारी मकान की खिड़कियां यहाँ जमा आया। हमने बहुत से अंडे खाए, अंडे जमा है। डैश बंद करके हम कुछ नहीं देख सकते, आंखें बंद करके हम कुछ नहीं देख सकते। डैश रात को भूख रहे थे, कुत्ते रात को भूख रहे थे। दल और वलर कश्मीर की दो मशहूर झीलें हैं। इस तरह मैंने आपको वाहिद और जमा को जमलों में इस्तेमाल करना सिखाया है, ये आप याद रखेंगे, ये आपको इम्तिहान में आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मुज़क्कर मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करने होते हैं 2 लफ्ज 2 मार्क्स, ये वाहिद जमा के तौर पर जमा ये इस्तेमाल करने होते हैं 2 लफ्ज, तो 2 मार्क्स इसके भी होते हैं। दर्ज झैल जुमलों के हुस्न को मुनासिब तौर से मिलाए, ये आपके लिए नहीं रहेगा। अब इसके बाद आता है, तो अब इसके लिए मैंने आपको बताया गिनती के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं, वाहिद जमा, वाहिद एक के लिए, जमा एक से ज्यादा के लिए। तो उसके बाद वाहिद और जमा के बाद क्या आता है, वाहिद और जमा के बाद आता है जमा उल जमा। क्या आता है, जमा उल जमा।
जमाउल जमा का मतलब है कि माने हैं कि जब हम जमा के भी जमा बनाते हैं उसको कहते हैं जमाउल जमा। जमा के भी जब हम जमा बनाते हैं उसको कहते हैं जमाउल जमा। इसमें जमा वो इसम है जिसमें बज़ाहिर जमा की कोई अलामत नहीं होती मगर इसमें जमा के माने हैं। इसमें जमा बज़ाहिर वाहिद मालूम होते हैं लेकिन दरअसल कुछ इसमों का मजमुआ होते हैं। देखो यहाँ पर है अब जमाउल जमा जो है इस बात औकात जमाउल जमा की मैं आपको इसकी मिसाल बताऊंगी। अगर हम जाएंगे बाजार तो बाजार से हम लाएंगे केले, हम लाएंगे एक लिफाफ में 1 दर्जन, दूसरे लिफाफ में 1 दर्जन, तीसरे लिफाफ में 1 दर्जन, वो भी जमा है। 1 दर्जन जमा है, 1 दर्जन दूसरा 1 दर्जन भी जमा है, तीसरा दर्जन भी जमा है। जब हम इनको मिलाएंगे तो ये जमाउल जमा बन जाते हैं। पेंसिल के लिए, पेंसिल लाने के लिए हम बाजार जाएंगे तो हमने 1 डिब्बा खरीदा, उसमें 12 है, 1 दर्जन है या 24 कुछ है, दूसरा डिब्बा है उसमें भी 12 है और तीसरा डिब्बा है उसमें भी 12 है, चौथा डिब्बा है उसमें भी 12 है। तो फिर हम इन सब को मिलाएंगे। जब हम इन सब को मिलाएंगे तो ये जमाउल जमा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जमाउल जमा। जब हम जमा के भी जमा बनाते हैं उसको कहते हैं जमाउल जमा। जमा के भी हम जमा बनाते हैं उसको बोलते हैं जमाउल जमा। किसको बोलते हैं जमाउल जमा? जमा के भी जमा हम जमा के भी जमा बनाते हैं। हाँ शाबाश, बहुत खूब। जमा के भी हम जमा बनाते हैं तो उसको कहते हैं जमाउल जमा। इस तरह से आपको आया समझ में? वाहिद किस तरह जुमले में इस्तेमाल होता है, जमा किस तरह इस्तेमाल होता है और जमाउल जमा क्या होता है। देखो यहाँ लाजिम, लाजिम की जमा है लवाजिम, लाजिम लवाजिम। तो जब हम उसके जमाउल जमा बनाएंगे लवाजमात, इसके पीछे मीम के पीछे अलिफ और ते लगाना होता है तो जमाउल जमा बन जाते हैं। ये इसका कायदा है। जिस तरह से दवा, अदविया, अदवियात, दवा, अदविया, अदवियात, खबर, अखबार, खबर वाहिद है, अखबार बनता है खबरों से तो वो जमा है। जब बहुत सारे अखबार निकलते हैं तो उसको जमाउल जमा कहते हैं अखबारात। अमर, उमूर, उमूरात, वजह, वजूह, वजूहात, रस्म, रसूम, रसूमात, जवाहर, जवाहर, जवाहिरात। इस तरह से हमने जमाउल जमा भी बना लिए हैं। लाजिम, लाजिम का जमाउल जमा क्या बन जाएगा? लाजिम का पहले जमा आएगा लवाजिम और जमाउल जमा आएगा लवाजमात। लवाजमात। दवा की जमा क्या आएगा? अदविया। हाँ, और अदवियात। पीछे क्या लगाना होता है? जमाउल जमा। अलिफ और ते, अलिफ और ते। इस तरह से जमाउल जमा बन जाते हैं जब हम पीछे लगाएंगे अलिफ और ते जमा बन जाए। तो ये था आज का लेसन जो मैंने आपको बताया। वाहिद क्या होता है, वाहिद को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं जुमले में, जमा क्या होता है, जमा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है जुमले में। तो जमाउल जमा क्या होता है? जब जमा के भी जमा बनाते हैं तो उसको कहते हैं जमाउल जमा। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया, अलिफ ते पीछे लगाने से जमाउल जमा बन जाता है। तो ये था आज का लेसन। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मैम। आया समझ में अच्छी तरह से आपको? यस मैम। चलो ठीक। मैम हम लीव करें? शाहन सिद्दीक का रोल नंबर क्या है? शाहन सिद्दीक का रोल नंबर वो है ही नहीं है मैम शायद ये हमारे क्लास का नहीं है। नहीं है।
नो मैम, ये शायद हमारे क्लास का नहीं है। तसदुक आया है कोई, वहाँ भी वहाँ नहीं है तसदुक। नो मैम, वो भी हमारे- हमारे क्लास का नहीं अब है। बोल रहे हैं ये रोल नंबर 9 गलत बोला इसने। चलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।